नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं मन की बात और मन की बात कार्यक्रम में आम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और क्या कुछ कहना है यहाँ पर जनता का वो आपको दिखा देते हैं। चलिए सबसे पहले आपको पंजाब लिए चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी का बोलबाला देखने को मिल रहा है। भगवंत मान की सरकार लगातार एक्शन मोड में देखी जा रही है और 25,000 से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का फैसला किया गया, जिसमें पुलिस विभाग में भी यहां पदों को भरने के लिए बात कही गई है। क्या कुछ कहना है इस बीच में आम जनता का, देखिए। भगवंत मान जी ने प्रॉमिस किया कि असी पंजाब दे विच रोज़गार दे अवसर पैदा करांगे, लोकां नूं नौकरियां देंगे। उन्होंने जिहड़े 25,000 नौकरियां का ऐलान किया, उस तो असी बहुत खुश हैं, सारी आवाम खुश है, क्योंकि हुण 25,000 घरां विच मतलब अग जल्दी हो जूगी तो लोग खुशहाल होणगे। इस तो बाद असी हुण ये चाहुंदे हां कि उन्हां दी कमिटमेंट के हिसाब नाल जिहड़ा उन्होंने किया है कि पंजाब च नशिਆਂ ते रोक लाई जाए, क्योंकि जवान बच्चे लोगों के मर रहे हैं। तो असी चाहुंदे हां कि इहदे ते बहुत सख्ती नाल ये हुण अगला जिहड़ा हैगा इहदा काम करन ते गवर्नमेंट तो लोग सारे एक्सपैक्ट कर रहे हैं कि यह नशा मुक्त पंजाब बने साडा ते खुशहाल पंजाब बने। पंजाब ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਗੇਂਦ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਕਿ 25,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਅਤੇ 35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ +2 ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 25,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35,000 ਜੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ।
चलिए अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं और उत्तराखंड में भी आप देखिए पुष्कर सिंह धामी सरकार किस तरह से एक्शन मोड में देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पर आम जनता ने अपना भरोसा दिखाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भरोसे पर कितना कायम उतरेगी और किस तरह से काम करेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच में यहाँ पर आम जनता क्या कुछ पूरे सवाल सामने रख रही है, क्या कुछ उनका कहना है, देखिए। ये अपेक्षाएं बहुत हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। सबसे पहले शुभकामनाएं हमारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो भी आज मुख्यमंत्री चुने गए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को जो जिस तरीके से दोबारा मौका मिला, ये भी एक इतिहास है और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो भी, क्योंकि जिस तरीके से एक नेगेटिव माहौल विपक्ष ने बना रखा था, उस बीच में थोड़े समय का जो कार्यकाल मिला हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को, लगभग 6 महीने के समय में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने जिम्मेदारी को संभाला और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के चले और हर क्षेत्र में उन्होंने ध्यान दिया। उसका नतीजा रहा कि भाजपा ने बड़ी सफलता प्राप्त करी और हाईकमान ने उनका भरोसा जताया और उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और आभार है जनता का भी, जिन्होंने सबने सहयोग किया, पार्टियों ने सहयोग किया, संगठन ने सहयोग किया और उम्मीदें चाहते हैं कि जैसे कि मेडिकल क्षेत्र में सुधार हो। जो अस्पताल है हमारे यहाँ पर, उसमें आज भी कई ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें मरीज को लेकर के जाना पड़ता है, हमें बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, बरेली जाना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पेशेंट हैं उनकी सुविधाएं यहीं पर ही प्राप्त करी जाए। काशीपुर में हॉस्पिटल है, आसपास के क्षेत्रों में बड़े बड़े हॉस्पिटल, उसमें सुविधाएं बढ़ाई जाए और सड़कों का निर्माण लगातार हो ही रहा है। स्कूल का जो शिक्षा स्तर है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। हालांकि हमारे यहाँ NCERT की जो किताबें लगाई गई हैं उस पर अभी तक पूरी तरीके से अमल नहीं हो पा रहा है। कुछ स्कूल वाले अभी भी अपनी प्राइवेट किताबें उसमें लगाने के लिए मजबूर कर देते हैं बच्चों को। मुख्यमंत्री धामी जी इस बार फिर से एक बार आए हैं। सबसे पहले शुभकामनाएं हैं धामी जी को और भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात यह है कि धामी जी को एक्चुअली पिछले समय में बहुत ज़्यादा मौका मिला नहीं और एक ऐसी परिस्थिति आ रही थी कि लगातार मुख्यमंत्री चेंज हुए। हम तो साहब एक चीज़ चाहते हैं, सिर्फ काशीपुर का निवासी होने के नाते, कि काशीपुर को विश्व मानचित्र पे आना चाहिए। अब उसमें कितनी सुविधाएं वो काशीपुर को देते हैं, क्योंकि कोई नई योजनाएं काशीपुर के लिए स्पेशली नहीं आती। जैसे अब एम्स है वो कहीं और चला गया, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, सड़कों का निर्माण, सौंदर्यीकरण, मतलब एक काशीपुर को एक टाउन जो आज की डेट में सबसे अच्छा सिटी कुमायूं रीजन का होना चाहिए था काशीपुर। हल्द्वानी, रुद्रपुर सब जगह का डेवलपमेंट हुआ, पर काशीपुर की स्थिति आज भी ख़राब है। शहर के बजाय टाउनशिप बन के रह गया है काशीपुर। तो हम चाहते हैं काशीपुर का विकास हो, सौंदर्यीकरण हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर हो। यही सबसे बड़ी चीज़ है ताकि लोग थोड़ा सा रोगों से मुक्त हों। अब यहाँ पे नगर निगम के स्तर पे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, उन पे ध्यान दिया जाए। छिड़काव नहीं होता, बीमारियाँ हैं, मच्छर है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, सड़कों का हाल बुरा है। अपना द्रोणा सागर का एक सौंदर्यीकरण हो जाए, एक अच्छा पिकनिक पॉइंट बन जाए, कम से कम वहाँ पे जाके लोग जाएं तो अच्छा लगे। तो यही सब चीज़ें हैं साहब, यही हमारी उम्मीदें हैं कि स्पेशली आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है काशीपुर के लिए, तो हम तो यही चाहते हैं धामी जी से कि वो थोड़ा सा ध्यान देके काशीपुर में थोड़ा विकास करें। पहले तो पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई कि वो उत्तराखंड के फिर से CM बने और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है कि दोबारा मुख्यमंत्री अभी तक रिवर्स किसी ने किया नहीं है उत्तराखंड में। और हमें जो पिछला कार्यकाल उनका रहा है 6 महीने का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। तो हमें उम्मीद है कि आगे भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे और प्रदेश का विकास के रास्ते पे आगे ले जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बीजेपी सरकार का दूसरी पारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भी हमारे वही पुराने हैं, लेकिन पुराने से काम नहीं चलेगा। उनको थोड़ा सा अपने काम में नयापन लाना पड़ेगा। जो घोषणा पत्र उन्होंने वादे किए हैं जनता से, उन्हें पूरा करना पड़ेगा। तो दूसरी बात यह कि आप काशीपुर वाली ज़िले की मांग जो काफ़ी पहले से उठाते आ रहे हैं, तो हम काशीपुर जनता से हम तो ये कहेंगे कि पहले काशीपुर ज़िला बने और जो दूसरी समस्या है उनका भी निराकरण हो। जैसे काशीपुर में जाम की समस्या है, तो हम ये चाहते हैं कि हमने माननीय विधायक के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि काशीपुर की समस्याओं का निदान किया जाए और प्रत्येक नागरिक को उसकी उसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। क्योंकि जनता ने दोबारा से सरकार पे भरोसा जताया है और इससे जो है उसे पूरा करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा धामी जी से कि आप जब दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं तो हर नागरिक की, उत्तराखंड के वासी की हर इच्छा या जो उसकी समस्या, उनका समाधान किया। ने दोबारा इस पे अपना जो जताया है, विश्वास जताया है, क्योंकि जनता में भी बहुत इच्छा थी कि इन्होंने 6 महीने काम करे हैं
वो 6 महीने वो कार्य कर रहे हैं जो बहुत टाइम से कोई भी मुख्यमंत्री कोई निर्णय नहीं ले पाया। और मुझे आशा है कि अगले, अब तो पहले तो 6 महीने थे, लेकिन अब तो पूरे 5 साल है, तो वो जो निर्णय उन्हें जल्दबाजी में और तेज़ी से लेने थे, अब वो आराम से निर्णय ले सकते हैं, सोच समझ के ले सकते हैं। जनता की सुरक्षा है, युवा रोजगार का मसला है जो कई साल से पूरा नहीं हुआ है, उस मसले पे काम कर सकते हैं। सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं, उत्तराखंड और काशीपुर और आसपास के इस एरिया का विकास हो रहा है। और जो मेन चीज़ें हैं, रोज़गार का मुद्दा है, वो रोज़गार के मुद्दे में मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा काम करेंगे। चलिए अब आपको नोएडा लिए चलेंगे और नोएडा से भी दिखा देते हैं कि महंगाई किस तरह से चरम पर देखी जा रही है और आम जनता की किस तरह से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। क्योंकि अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें, उसके साथ साथ एलपीजी सिलेंडर्स की बात करें तो महंगाई चरम पर देखी जा रही है, दाम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में क्या कुछ कहना है आम जनता का, देखिए। राशन ले जाओ, दे ही नहीं रहे राशन, कहते खत्म हो गया, बाद में आना लेने के लिए 10 बार चक्कर काटो जब जाके राशन नहीं मिले। 10 बार के बाद भी राशन नहीं मिल रहा है? नहीं, राशन वहाँ से ही नहीं आ रहा है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा है? हाँ जी, हाँ, कंपनी बहुत बढ़ गए हैं राशन की दुकान। सिलेंडर के 1000 रुपए का होएगा। सर देखिए, इस समय महंगाई की मार इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि आम आदमी बिल्कुल परेशान है, क्योंकि इनकम तो उसकी बिल्कुल है नहीं और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जो हमारी इनकम है ना, उससे हमें पूर्ति होती नहीं है, क्योंकि बच्चों से स्कूल फीस से लेकर के गैस सिलेंडर, घर का खर्चा, इतना हर चीज़ महंगी है कि आज जो हमारी इनकम है ना वो तो कुल 10,000 रुपये और जो हमारी खर्चे हैं ना महीने को कम से कम 20,000 के लपेट में होते हैं। तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जैसे घरेलू चीज़ें हैं, गैस है और पेट्रोल है, ये कच्चा तेल है, जो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ये सब चीज़ें कम करनी चाहिए, क्योंकि जो आम आदमी सही से अपना गुजारा कर सके। देखिए, महंगाई का जो आलम है ना, वो गरीब आदमी को बिल्कुल मारे दे रहा है। हम वोट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब हर जगह से पीएम मोदी को या बीजेपी को जिता रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या मिल रहा है हमें? सिर्फ महंगाई। मतलब आप देखिए, तेल खाने का 200 के पास पहुंचने वाला है। अभी कल या परसों ही सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए। मतलब हम गरीब आदमी जाएं तो जाए कहाँ? पीएम मोदी क्या हम लोग की गरीबों की बिल्कुल भी नहीं सुनते? कम से कम पीएम मोदी को ये देखना चाहिए कि इन गरीबों का क्या होगा जिस गरीब का वोट मिलता है उनको। तो एक बार कम से कम सोचें और महंगाई पर लगाम लगाएं। मैं पीएम मोदी से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जनता के ऊपर ये महंगाई टूट रही है, ये चीज़ मतलब सही नहीं है। देश के विकास के लिए हमें टैक्स देना चाहिए, मगर इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ेगी तो जिनके पास पैसा है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मगर मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं, वो फिर और जो कमाएंगे अपना दिन भर या महीने में, वो कमाएंगे, खाएंगे और ऐसे ही निकल जाएगा उनका। तो महंगाई भारत सरकार को कम करनी चाहिए, जिससे कि आम लोगों को ज़्यादा सुविधा हो और आम लोग अपने जीवन को अच्छे से जी पाएँ और बचत कर पाएँ। आप लोग तो बोलिए कि हाँ योगी जी को हम लोग जिता दिया, तो अब क्यों बंद कर दिया राशन? हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ हम विधवा है, कहाँ जाएंगे? राशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है? महंगाई बढ़ती जा रही है। झुग्गी को हम लोग किराया देते हैं, कहाँ से देंगे? कितना मुश्किल हो रहा है जीना? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मजबूरी आ गया है। हम लोग तो लगता है कि रोड पर आ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? योगी जी से आप बोलिए, आप लोग न्यूज वाला है ना, तो बोलिए कि थोड़ा माने राशन वाशन बांटे, हर चीज़ की सुविधा दीजिए। चलिए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं और दिल्ली में भी आप देखिए किस तरह से यहाँ पर नगर निगम जो है, तीनों नगर निगम की अगर बात करें वो एक होंगे और सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला यहाँ पर सामने रखा गया है। लेकिन इस बीच में दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, देखिए। जी, तीनों निगमों को सरकार ने एक करने की जो प्रयास की है वो बहुत अच्छा है और बहुत वेलकमिंग है, इसलिए कि तीनों नगर निगम पहले जो दिल्ली के नगर निगम है वो अलग अलग थे। इससे काफ़ी नुकसान हुआ था, जो फाइनेंशियल डिफिसिट है वो काफ़ी बढ़ गया था। अब जो है तीनों को एक करने से जो फिनेंशियल क्रंच है वो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि वो ख़त्म हो जाएगी और एमसीडी अच्छे से और बहुत तरीके से काम कर पाएगी। देखिए, जो तीनों निगमों को एक किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं आम जनता को ही फायदा पहुंचेगा और जिन चीज़ों में ऐसा कोई अगर फैसला होता है जिससे आम जनमानस को फायदा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टियों को आगे आना चाहिए और ऐसे फैसलों की सराहना करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी दल हो। यहाँ तक कि अगर बात की जाए दिल्ली में अभी तक देखा जाए जो भी फैसले लिए गए हैं जनता के हित में, उन पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष में है पता चलता है कि हाँ उनके द्वारा टांग अड़ाया जाता है। अगर बात करें अभी तक
तक नगर निगम में तो बीजेपी काबिज थी, और जैसे ही कोई चीज़ होती, इसमें कोई भी फैसला लिया जाता तो दिल्ली सरकार तुरंत उसमें कमियां निकालने लग जाती। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो है वो फ़ायदा होगा हम लोगों को, जो यहाँ के दिल्ली के रहने वाले लोग हैं। केजरीवाल को यहाँ पर आना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। तीनों निगम में एक होने से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जनता के लिए ये बहुत अच्छा है कि 3 महापौरों की जगह 1 महापौर बनेगा। वो जो डिसीजन होगा सर्वमान्य होगा और सबके हितों के लिए होगा। जनता के लिए जो हमारे दिल्ली महापौर बनेंगी वो जनता के हित में ही कार्य करेंगी और अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। हमें तीनों निगमों को एक जगह होने से कोई आपत्तिजनक नहीं है। चलिए अब आपको हरियाणा लिए चलेंगे और हरियाणा में आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से काम चल रहा है। सूरजकुंड मेले को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां पूरी तरह से जोरों पर हैं। दिल्ली और साथ ही साथ गुरुग्राम में बस की सुविधा भी रखी गई है, लेकिन क्या कुछ चल रहा है वहां पर, इस पर आम जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने गुड़गांव और दिल्ली से स्पेशल बस सूरजकुंड के लिए चला करके बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले जब मेले में लोग बाग जाते थे तो 1 से 2-3 बसें बदलनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है एक बस में बैठो, गुड़गांव से किसी को सूरजकुंड मेला देखने जाना है तो गुड़गांव से बैठो, सीधे मेले के अंदर उतरो। दिल्ली से बैठ जाना है, दिल्ली से बस से बैठो और सीधा सूरजकुंड उतरो। ये एक वो अच्छा सराहनीय काम है मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि सूरजकुंड मेला एक ऐसा मेला जहाँ हरियाणा की पूरी संस्कृति को दिखाया जाता है। ये हरियाणा वासियों के लिए तोहफा मुख्यमंत्री जी ने दिया है, बहुत सराहनीय कदम है। सूरजकुंड मेले के लिए हमारे मुख्यमंत्री खट्टर जी ने सूरजकुंड मेले के लिए स्पेशल दिल्ली और गुड़गांव से बसें चलाई हैं। उनका बहुत सराहनीय है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहले क्या होता था जी, पहले लोग भीड़ में जाते थे, सिर्फ ओनली 1 या 2 बसें चलती थी। अब उन्होंने डायरेक्ट बसें चलवा दी। अब लोगों को मतलब वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत बढ़िया मतलब सुविधाओं के साथ उन्होंने ये काम किया। मैं उनसे तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हरियाणा सरकार ने दिल्ली और गुड़गांव से स्पेशल बस चलाई हैं, वो एक बहुत अच्छी पहल है और उनसे मतलब लोगों को आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं होगी। और खट्टर साहब जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि भाई उन्होंने स्पेशल बसें चलाई दिल्ली और गुड़गांव से। बहुत बहुत धन्यवाद है खट्टर साहब का। मेले के लिए जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने जो बस चलाई है सूरजकुंड मेले के लिए दिल्ली और गुड़गांव से, बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। पहले मैं जाता था सूरजकुंड में मेले में 2 से 3 बसें बदलनी पड़ती थी, लेकिन अब 1 बस सीधा, वो बहुत सराहनीय काम है उनका। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा मन की बात कार्यक्रम में हर राज्य के अंदर से आम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हुई है और हर किसी की उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द इस पर गौर फरमाया जाए। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।